Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can you give us your brief introduction? My name is Saira Mustafa Sidhu. I am basically textile engineer. I have graduated in textile engineering. I have done my master's in environmental engineering. Now I am doing PhD in environmental engineering. I am working here as a PhD scholar under HEC project in environmental engineering department USPCAS. So I have worked on nanomaterials, water filtration membrane, water technologies, synthesis, characterization of materials in the field of environmental engineering. So this is. That's good to hear, Ms. Sarah. Okay, I would like to first of all ask you about your opinion on the significance of the conference that USPCASW has done for the past 2 days. What is your opinion on its significance on water governance and climate resiliency? Okay, first of all, I congratulate to the whole team, to the higher authorities of Water Center, Mehran University. This conference is very brilliant conference and it's a very wonderful platform for the youth, for the researchers, for the stakeholders, communities, and for all. Basically for bachelor undergrad students. So in this type of conferences where we can share ideas and find the solutions of the problems of technical solutions. So this conference theme basically on climate resilience. um, as all we know, the climate change is the biggest concern of today's world. अ, मेरे हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस इस तरह से है कि हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड इसमें किए गए हैं, या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस तरह के मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास रिसर्चर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल से आए हैं, जिन्होंने बहुत वंडरफुल टॉक्स की हैं, जिनकी बहुत मीनिंगफुल प्रेजेंटेशंस थी, जिससे हमें बहुत लर्निंग हुई है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए होने चाहिए, जिस पे वो मज़ीद खुद को ग्रो कर सकें और कम्युनिटी के लिए जो भी हमारे पास ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उसको हम सस्टेन कर सकें। सो बेसिकली दिस ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे है। सो यही हमारा गोल है अल्टीमेटली। दैट्स ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस सायरा कि विद द अपकमिंग क्लाइमेट चेंजेस एंड एवरीथिंग वी डू नीड दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस टू highlight the issues. Secondly, you also presented your paper in one of the technical sessions. Can you please give the key highlights from your paper? Yes, I have presented my paper. I have done my thesis on mm, I have done my thesis on membrane technologies, on nanomaterials, technology. So I have presented a very little part of my study in this conference. That is as basically based on agriculture solutions. I have worked on pesticide, herbicides. As all we know, Pakistan is agriculture country, and we all based on agriculture, food, taxes, and all. So if we talk about the agriculture, so there is a ultimately word in our minds comes in, that is pesticides, herbicides we used in our agriculture fields for crop protection and all. So I have worked on pesticide, herbicides, on atrazine removal from agriculture wastewater. So I have basically synthesized a membrane, mm, titanium dioxide embedded nanofibers membrane, which is ultimately solution of removal of targeted pollutant from water. I have developed a prototype. We can say that point of use device we can use in fields, in households, as a household filter that is portable. So I have presented. I have working under the theme environmental engineering and climate resiliency. So this is also the part of this. So this is. That's great. Okay, now my question is that how do you think, first of all, how do you think कि ये जो conferences हैं on climate change and how we can focus on the issues and how we can solve that, तो ये सारी चीज़ें how do you think जो upcoming researchers और scientists हैं उनके लिए helpful कैसे हैं, and how do you think कि ये चीज़ें common man को how would they help in protecting the environment?
अच्छा ऐसा है देखें कि अब जो हमारे पास सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज इस तरह से हो रहा है, ऑल ऑफ सडन हमारे पास वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो क्लाइमेट रेजिलियंस बेसिकली इसको कहेंगे हम। तो इन सब के लिए कॉमन मैन के लिए तो यही है कि जो भी हम कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की, ये इस तरह के अवेयरनेस सेशन उनके लिए हो सकते हैं, उनको अवेयरनेस होगी। क्योंकि डायरेक्टली देखें हम किसी भी चीज़ को कम एज अ पर्सन एज अ मैन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये एक कलेक्टिवली अप्रोच होगी और ये सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में। अवेयरनेस होगी तो ही हम किसी चीज़ पे काम कर सकेंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं मालूम होगी तो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा। सो जो कम्युनिटी है उसके लिए ये है कि उनको हम इस तरह के अवेयरनेस सेशंस पहले प्रोवाइड करें, फिर उनके बाद हम उनको मिटिगेशंस मेजर्स की तरफ लेकर जाएं कि अगर आप इतना वेस्ट जनरेट करेंगे तो उस वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उस सॉलिड वेस्ट को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? पीपल डंप दैट सॉलिड वेस्ट इन वाटर, इन फ्रेश वाटर। तो इस तरह की जो है प्रैक्टिसेस, इसको हम इसी तरीके से कम कर सकते हैं कि हम कोई इस तरह के कैंपेन करें रन, हम कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करें या इस तरह का प्लेटफॉर्म उनको दें कि उनको अवेयरनेस सेशंस दें, वर्कशॉप्स करवाएं। तो जिससे ये है कि 100% नहीं, लेकिन ये कि 40% हमारी चीज़ें इससे बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जब अवेयरनेस आ जाएगी, आम आदमी को अवेयरनेस आ जाएगी तो वो फिर इस पे काम करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल मिस सारा, बिकॉज़ ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। एग्ज़ैक्टली। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव आफ्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, एंड ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक योर मैसेज वुड बी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एज़ अ एनवायरमेंटलिस्ट मैं तो इस तरह से चीज़ों को देखती हूँ कि एनवायरनमेंट हमारा सरमाया है और ग्लेशियर्स हमारा सरमाया है। जैसे आप सबको पता है, क्योंकि अब पानी के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि वाटर कंज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप एहतियात से पानी इस्तेमाल करें, आप सॉलिड वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करें, उसका डिस्पोज़ल ठीक करें। और एनवायरनमेंट की पोल्यूशन है, सबसे पहले जो हमारे पास पोल्यूशन में ना इंडस्ट्रीज़ का, ग्रीन हाउस गैसेस का और इस इनका बड़ा रोल है। तो हमें एज़ अ पर्सन, इस ये रिसर्चर, साइंटिस्ट, हमें ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट से ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन इमिशंस को कैप्चर कर सकें। जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। जब एनवायरनमेंट, हमारी एयर की पोल्यूशन कम होगी, रिड्यूस होगी, तो उसका अल्टीमेटली ग्लेशियर्स पे इफ़ेक्ट होगा, हमारे क्लाइमेट पे होगा, सॉलिड वेस्ट पे होगा और पानी पे होगा, जो कि हमारी सबसे बेसिक नीड है। हुँ। सो मेरा मैसेज यही है कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज करें और पानी को बचाएँ, ख़ास तौर पे सेव वाटर सेव लाइफ। थैंक यू मिस सारा फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।